Good morning, everybody. Namaste. I hope all of you are doing well. I am FitQ Guru Salima Poonawalla. I welcome all of you once again in this wonderful training session of Pinkathon powered by FitQ. Okay, so I must start by thanking all of you all over again. मिलिंद सर इज वेरी हैप्पी कि इतने सारे लोग हमारे लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वी आर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू. Most of you have shared what is it that you want to experience in the sessions that are to follow. तो आप सभी के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए we are going to design our sequences. So please keep the feedback coming. Okay. I must also say that आप लोग you all are being very generous in your appreciation of our work. Thank you very much for that. Pinkathon and FitQ is extremely grateful for your participation and we hope that day by day आप हर सेशन में पार्टिसिपेट करें, आपके फैमिलीज और फ्रेंड्स भी सेशंस में पार्टिसिपेट करें और आप ग्रोथ देखें. ओके, तो ऑफ कोर्स ऑल योर फीडबैक इज वेलकम. हम आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए सेशंस डिजाइन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, नए सीक्वेंसेस प्रेजेंट करेंगे और हम ये भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोग्रेस दैट यू आर सीइंग. Okay, so like you know, FitQ offers a lot of training programs now that we are all homebound. तो बहुत सारे online programs हमारे offer हो रहे हैं, whether it is yoga or cardio or fitness, functional fitness, zumba, whatever it is. तो जो भी आपकी requirement है, जो भी आपको पसंद है, please उसको continue करें. Diet counseling is also something that we offer. तो in all ways, take a holistic charge of your health. Now is the time to make sure that you stay healthy in every way. Okay, so apart from your feedback, apart from your requirements, apart from your expectations of us, please also share what are the changes that you are experiencing now that you have started practicing with us. It will make us very happy to know about the progress that you are making. So let me introduce myself once again. I am FitQ Guru Salima Poonawalla and I am a yoga therapist by profession. तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि जो फीडबैक आप लोगों ने शेयर किया था ऑन अ डेली बेसिस आवर टीम्स गो थ्रू ऑल द कमेंट्स एंड देन वी डिसाइड कि आगे हमको क्या करना है. तो आज का जो सेशन है ऑफ योगा फंक्शनल फ्लो, द आइडिया ऑफ द होल सेशन इज, लास्ट टाइम माय फोकस वाज ऑन अनलॉकिंग muscles or joints that have become stiff, that have not been in use for a very long time due to various reasons. आज उससे एक स्टेप आगे जाते हुए बेस्ड ऑन योर फीडबैक एंड योर रिक्वायरमेंट्स आई एम गोइंग टू शो यू थिंग्स जो हमारे पास बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था. जब फिटनेस लोग देखते हैं तो द की पैरामीटर, वन ऑफ द पैरामीटर्स पीपल वांट इज अ टोन्ड बॉडी. के बॉडी के मसल्स जो हैं वो अच्छे से टोन होने चाहिए, फ्लैबी नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाइल देयर आर मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दैट, हमारी डाइट भी मैटर करती है, हम पूरे दिन में कितने एक्टिव रहते हैं वो भी मैटर करता है, हम क्या एक्सरसाइज करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें क्यूमुलेटिव तरीके से काम करती हैं. Having said that, मैं आज आपको जो दिखाने जा रही हूँ, this is going to really work for toning your body and we are going to take care of the entire body. And please stay put from start to the end. I will tell you why. शुरू में मैं आपको जो दिखाऊंगी, आई एम गोइंग टू टीच यू कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, भले देखकर आपको लगता है कि ये अपर बॉडी के लिए है, ये सिर्फ आर्म्स के लिए है, ये सिर्फ पैरों के लिए है, बट ट्रस्ट मी, यू कैन मेक द मैक्सिमम ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू इफ यू एंगेज द एंटायर बॉडी. अब अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ नेक मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें तो सिर्फ नेक ही एंगेज होगा ना, बट दैट्स नॉट हाउ इट इज. सो आई एम गोइंग टू शो यू सम very good things, very good tips that you can use, that you can implement in your daily workout no matter what is it that you are doing. तो उसका इस्तेमाल करें and make the most of every minute that you spend on the mat or on the field whenever you're out. Okay, so stay put. Also, one more important thing, I am going to devote the last 10 to 15 minutes for answering your questions. आई नो के सेशन के बीच में आपको ये सवाल आता है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, आई एम अ सीनियर सिटीजन, व्हाट कैन आई डू. सो वी हैव ऑलरेडी टेकन ऑल दैट इनटू अकाउंट. जैसे मैं आपको सीक्वेंसेस, मूवमेंट्स दिखाती जाऊंगी, आई विल ऑल्सो शो योर ऑप्शंस कि अगर आपके XYZ चैलेंजेस हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हाउ कैन यू कस्टमाइज दिस सेम मूवमेंट फॉर योर सेल्फ टू मेक द मोस्ट ऑफ आउट ऑफ इट. सो दैट विल बी ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. उसके बाद क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड वी आर ऑलवेज हैप्पी फॉर दैट. तो व्हेन द लास्ट 10 to 15 minutes, when we reach that time slot,
I will come close to the screen, I will sit here and I will be in a position to go through your questions and answer them in a systematic manner. तो जहां तक हो सके आप अपने सवाल लास्ट के लिए उनको बचा कर रखिए. एंड लाइक आई सेड, जो भी लिमिटेशंस को रहते हुए हमको काम करना है, दैट आई एम ऑलरेडी गोइंग टू incorporate when I'm explaining, and I will explain with the breath and everything put together. ठीक है. So with that, I hope all of you are set. We are going to need a yoga mat. और आज जो हम करने वाले हैं, we have divided today's workout into 2 parts. पहले वाला जो है वो मोस्टली हम खड़े रह के या बैठ के करने वाले हैं. दूसरा वाला हम लेट कर करने वाले हैं. Some of you, जरूरी नहीं होता है, लेकिन some of you will be more comfortable if you keep a blanket or a bed sheet handy. फोल्ड करके रजाई जैसा या ब्लैंकेट जैसा कुछ भी आप हैंडी रख लीजिए, ताकि वर्कआउट के बीच में आपको दौड़ना ना पड़े वो लाने के लिए. इट विल जस्ट मेक यू मोर कंफर्टेबल. ओके, तो इसी के साथ में वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एंड लाइक आई सेड, आई एम गोइंग टू शो यू कि हर एक मूवमेंट में, हर एक जब आपको लगे कि ये सिर्फ नेक के लिए है, सिर्फ हाथों के लिए, तब भी पूरी बॉडी को कैसे एंगेज करना है, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी second that you spend on your workout. This is very precious time, and I must appreciate all of you. About 1,000 people join us live, and then another almost 100,000 people watch our videos. It's a lot of time that you all are making out, because आप घर पे भी काम कर रहे हैं, घर पे ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रख रहे हैं, everybody. Okay, so hats off to all of you all. So make sure you make the most of this time. Okay, this is your time. You're investing in yourself, and FitQ का यही purpose है, Pinkathon यही चाहता है that you stay in the pink of health. So with that, let's get started. All right. तो शुरू में आपको बस खड़े रहना है. आपके पैर जो है वो हिप विथ अपार्ट रहेंगे. एवरी लिटिल थिंग मैटर्स. आपके पैर की पोजीशन मैटर करती है. आप पैर साथ में रख के खड़े रहिए, फील करिए कैसा लग रहा है आपको, और फिर आप पैरों में डिस्टेंस करके खड़े रहिए, और फिर आप फील करिए. यू विल फील द डिफरेंस. बी अवेयर, दिस इज 1 hour फॉर योरसेल्फ. बाकी सबको भूल जाइए. ओके, और अपने आप पे फोकस करिए. जब आप खड़े रहते हैं, कीप योर टोज एंड हील्स इन अ स्ट्रेट लाइन. All right, that makes a big difference. और अपने टोस को जरा स्प्रेड आउट करके रखिए. टोस को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करिए और हल्का सा, I'll step back a little and then I'll come close again. Okay, so टोस को हल्का सा एक एक पैर उठा के, okay, lift your foot upwards, spread out the toes and then gently put it down back. Repeat the same thing on the other foot. Okay, spread out the toes and then gently. And now you feel the difference in how your feet are in contact with the floor. It makes a big difference. Okay? तो इससे जो है हमारी पूरी body is meant to be used like this. So let's learn how to do that. Feet आपने place कर लिए. अब आपके thighs और आपके knees को आपको contract करके रखना है. इनको आपको inactive नहीं छोड़ना है. इनको आपको engage करके रखना है. तो knees की तरफ ध्यान दीजिए. knee muscle को tight करिए और ऊपर की ओर pull करिए. Same with the thighs. ओके, यू विल फील द डिफरेंस. अब इनको आपको ऐसे ही एक्टिव रखना है. हाथ आपको थोड़े से नीचे की तरफ पहले पुश करिए, ऐसे बेंड करिए एल्बोस को, उंगलियों को ऐसे फैला के रखिए और फिर नीचे की तरफ इनको लंबा करिए हाथों को. ओके, लास्ट टाइम आई हैड शोन यू, ऐसे खड़े नहीं रहना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रोटेट योर शोल्डर्स अ लिटिल बिट. योर चेस्ट इज लिफ्टेड अपवर्ड्स, नॉट केव्ड इन लाइक दिस. सीधा खड़ा रहना है. ओके, और एब्डोमेन भी आपको सीधा रखना है, ताकि आपका कोर भी एंगेज रहेगा. पैर हमने पहले ही एक्टिवेट कर लिए, कोर भी सीधा हो गया, शोल्डर्स रोल कर दिए, लंग्स भी अच्छे से ओपन हो गए. नाउ वी आर रेडी टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस आवर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक मूवमेंट्स टू बिगिन विथ. वी आर गोइंग टू टर्न आवर नेक ऑन टू द लेफ्ट साइड. शोल्डर से टर्न नहीं करना है. प्लीज स्टे पुट फॉर 5 seconds. 1 2 3 4 and 5. धीरे से सामने लाइए एंड चेंज. इतनी देर खड़े नहीं रहना, तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. चेंज. 1 2 3 4 5. Change. 1 2 3 4 5. Change. 1 2 3
4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Now slowly return to center और धीरे धीरे आपको चिन से नीचे लेकर जाना है गर्दन को. आपको शोल्डर्स या बैक को केविन नहीं होने देना है. आप सीधे ही खड़े रहेंगे. You will gently turn the chin downwards and stay there for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. अब धीरे से सीधा करें और पीछे लेकर जाएं. जिनको वर्टिगो की शिकायत हो वो आंखें खुली रखें. स्लो करें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें. Stay here for 5 seconds. फिर से धीरे धीरे नीचे. Make sure the whole body is active, just like I taught you at the beginning. पूरा downwards and stay. 1, 2, 3, 4, 5. फिर से backwards, पूरा पीछे. Stay there for 5 seconds. Somebody is asking, what if we can't join live? The video stays on our page, Pinkathon Facebook page. Please access it there. फिर से downwards, पूरा नीचे. 1, 2, stay there. 3, 4, 5 and backwards. पूरा पीछे. And stay there for 5 seconds before you relax. Now I am kneeling down because I want you to observe the next movement very carefully. आप प्लीज खड़े खड़े करिए. अगर खड़े रह नहीं सकते हैं बहुत देर तो आपको बैठ के करना है. बैठने के भी कुछ ग्राउंड रूल्स हैं. आपकी पीठ आप सीधी रखें. चाहे तो आप कुर्सी और अपने बैक के बीच में यू कैन यूज अ कुशन और अ पिलो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन हो सके उतना स्पाइन को आप सीधा रखें. और जब आप बैठे हैं कुर्सी पर या बेड पर या सोफे पर, तो आपके पैर जो है वो राइट एंगल पर होना चाहिए. सो योर हिप एंड नी शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड योर नी एंड फीट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन. सो इफ आई वर टू शो इट टू यू, जब आप बैठे हैं तो आपका इस तरीके का स्टांस, ऑब्वियसली मेरे पास में अभी आई एम जस्ट सिटिंग ऐसे, तो मेरे पैर पीछे है. अदरवाइज योर नी एंड फुट हैज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड योर नी एंड हिप हैज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज द राइट वे टू सिट. दैट इज हाउ नेचर मेंट अस टू सिट. ओके, तो ये हो गया. अब हम लोग जो लास्ट नेक मूवमेंट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू अ डायगोनल सॉर्ट ऑफ अ बेंड. तो आप पहले इसको ध्यान से देखिए. हमको क्या करना है, हमको कान से नीचे जाना है. किसी का भी कान शोल्डर पे टच नहीं करेगा. इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. तो उसके लिए एम नहीं करना है. हम ये क्यों कर रहे हैं, ऑब्जर्व केयरफुली. ओके, पहले हम गर्दन को सीधा रखेंगे, फिर हम धीरे धीरे ईयर से नीचे जाएंगे. गाल से हमको नीचे नहीं जाना है या चिन से हमको नीचे नहीं जाना है. वी गोइंग टू यूज द ईयर एंड वी गोइंग टू टर्न द नेक डाउनवर्ड्स लाइक दिस. व्हाई? टू स्ट्रेच द ऑपोजिट साइड ऑफ द नेक. ओके, शोल्डर को ऊपर मत उठाना, टच नहीं करना है. ओके, सो लाइक दिस 5 सेकेंड्स. फिर धीरे धीरे हम सीधा कर लेंगे नेक को, स्लो ऑलवेज. और फिर दूसरी तरफ फ्रॉम द ईयर. ओके, 5 सेकेंड्स. फील द स्ट्रेच इन द ऑपोजिट साइड. धीरे से फिर से सीधा हो जाएंगे. वी हार्डली डू दीज थिंग्स. ओके, तो करके देखिए. योर नेक विल थैंक यू. बाकी पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी. हाँ, 1, 2, 3, 4, 5. Slowly straighten up and change. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly straighten up and change. One more time each side. 1, 2, 3, 4, 5. Straighten up and change. Last time on the other side. 1, 2, 3, 4 and 5. Good. Now we are going to do something for our arms. आज हम जो करने वाले, like I said, the workout is divided into 2 parts. तो पहले हम engage तो पूरी बॉडी को करेंगे, लेकिन पहले जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारे आर्म्स पर रहेगा प्राइमरीली. तो उसके लिए हम थोड़ा सा वार्म अप करेंगे पहले आर्म्स का, एंड देन वी आर गोइंग टू डाइव स्ट्रेट इनटू द वर्कआउट. आपको खड़े रहकर करना है. खड़े खड़े थक जाएं तो बैठकर करना है. मैं नील डाउन कर रही हूँ सो दैट आई कैन बी क्लोज टू यू एंड शो इट टू यू प्रॉपरली. तो अब हमको क्या करना है, एवरीबडी, ऑल ऑफ यू, यू आर गोइंग टू कीप योर, मतलब हमको हाथ जो है वो इस तरीके से बांधने हैं.
तो बांधने का तरीका पहले आप देख लीजिए. ओके, वन palm ओवर द अदर, वी गोइंग टू क्लैस्प द फिंगर्स. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपना लेफ्ट हाथ आप ऊपर रखें, लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट हाथ नीचे, और इस तरीके से आप पाम्स को आपको क्लैस्प करना है, हुक बनाना है. दिस इज कॉल्ड द हुक क्रिया. इट इज अ मूवमेंट. तो आपको हाथों को इस तरीके से क्लैस्प करके पुल करके रखना है, लॉक कर देना है आपको, हुक को लूज नहीं करना है. ओके, योर एल्बोज विल बी एट शोल्डर लेवल, नॉट लाइक दिस. ये लगातार आपको ऊपर रखना है, क्लैस्प करके पुल करके रखना है. वेयर विल यू प्लेस दिस? बिटवीन द चिन एंड द चेस्ट, राइट इन द सेंटर. ओके, नियर द थ्रोट. अब देखिए कि इसके बाद में आपको क्या करना है. तो मेरा लेफ्ट हाथ ऊपर है, आई एम होपिंग आपका भी लेफ्ट हाथ ऊपर है. पहले आपने जो हुक बनाया है उसको आप थोड़ा सा साइडवेज लेकर जाएंगे, फिर इस हाथ को आप ऐसे सीधा करेंगे ताकि आप इसको सर के पीछे ले जा सके. ये दूसरे एल्बो पे ध्यान देना, इसको नीचे नहीं करना है. ओके, वॉच अगेन. हुक को पहले, हमारा लेफ्ट हाथ ऊपर है तो हमको लेफ्ट हाथ से स्टार्ट करना है. हम उसको साइडवेज लेकर जाएंगे, पूरा सर जो है इस हाथ के अंदर से निकालेंगे, हमारा दूसरा एल्बो शोल्डर लेवल पर ही रखेंगे. फिर हम दूसरी तरफ हुक को लेकर आएंगे और इस हाथ में से सर को बाहर निकालेंगे. आई एम गोइंग टू डू इट विथ योर, वॉच मी एंड डू इट. ओके, एल्बोज ऊपर, इनहेल एंड स्टार्ट. पूरा पीछे लीजिए. नाउ स्लोली गेट इट आउट फ्रॉम द अदर साइड and bring it back in the center. So as you inhale, you take the arms behind. As you exhale, you come back into place and you keep going round and round. हाथ पीछे जाना चाहिए हुक. ओके, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उसके रेंज के हिसाब से आपको ये करना है. We are going to do this 5 times clockwise, and then we will change the position of the arms and repeat it from the other side. Okay, so our shoulders, because of our hunched back, because of the way we sit in front of our systems, because of our screen time, due to various reasons ये compromise होता है. तो इसको हम एक्टिव कर रहे हैं. तो ये साइड हो गया. अभी आप राइट हाथ ऊपर लेंगे, फिर से आप हुक को लॉक करेंगे, पुल करके रखेंगे अच्छे से, दोनों एल्बोज शोल्डर लेवल पर रखेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. राइट हाथ ऊपर है, राइट हाथ से स्टार्ट करेंगे, पूरा रोटेट करके दूसरी तरफ एंड आउट. अगेन इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड आउट. वंडरफुल. इनहेल एंड अप feels great, doesn't it? Exhale and out. Inhale and up, exhale and out. Last time. Inhale and up, exhale and out. Okay, अगर आप बहुत दिनों बात कर रहे हैं या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा शोल्डर्स का एरिया जो है वो और भी ज्यादा स्टिफ लग रहा है, तो जस्ट शेक ऑफ योर हैंड्स लाइक दिस. ओके, शेक ऑफ योर पाम्स, शेक ऑफ योर हैंड्स आराम से, धीरे से. ओके, और उनको थोड़ा सा आप रिलैक्स कर दीजिए, बिकॉज अभी हमको इनसे बहुत काम निकलवाना बाकी है. ओके, सो नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट. And we had these requests that show us something for toning. Okay, basically when you say tummy reduction, when you say arm reduction, when you say lower body inch loss, what do you mean? You want कि body tone हो. Basically you have to convert the flab into muscle. Okay, that happens with dietary changes, that happens with lifestyle changes, and FitQ will be happy to help you with all those solutions. But right now I'm going to show you how to tone up. So these are things that you can incorporate into your workout and you will see fabulous results. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, मैं फिर से आपको दिखाऊंगी हाउ टू एंगेज द एंटायर बॉडी व्हेन यू आर डूइंग दिस. तो आपको खड़े रहना है विथ योर फीट हिप विथ अपार्ट. एक एक करके हाथ वेस्ट पे रख के एक एक करके आप पैर को पहले लिफ्ट करिए, सिर्फ हील पे बैलेंस करिए, टोस को स्प्रेड आउट करिए. यू नो द फ्रंट पार्ट ऑफ योर फुट, जस्ट स्प्रेड इट आउट एंड देन जेंटली पुट इट डाउन. रिपीट ऑन द अदर साइड. ओके, स्प्रेड आउट द फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट and then put it down and feel the difference. नहीं तो क्या होता है, पूरा दिन हम हमारे हील पे ही बॉडी वेट कैरी कर रहे हैं. Okay, now it is nicely spread out. This is how we are meant to stand and walk and operate. तो पैर hip width apart हो गए, feet are taken care of. Contract the knee muscles, contract the thigh muscles, keep them engaged. Okay, just push down the shoulders a little, थोड़ा सा rotate करके hands by the side. Lift the chest upwards, keep the core engaged.
ओके हम खड़े रहें, बैठे, कुछ भी करें, हमारा कोर एंगेज्ड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए. यू शुड make those muscles work even when you're standing or walking or sitting. That is also a very big toning tip. Okay, it really works. अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले now I'm going to kneel down again. I want to be close to you all. Okay, आप खड़े रहेंगे या फिर आप बैठ के करेंगे based on what your body requires. अब हम हाथों को पूरा सीधा करेंगे. I'm going to show this to you sideways first, so because there is a very important thing that you need to remember. तो क्या होता है, जैसे ही हम हाथ आगे करते हैं सबकॉन्शियसली यहां से भी हम आगे हो जाते हैं. मे बी नॉट सो प्रोनाउंस, लेकिन धीरे धीरे जो है ये मैंने जो कहा है एंगेज करके रखिए, इसको एक्टिव रखिए, ये सब छूट जाता है. तो यू विल हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ एवरी फ्यू सेकेंड्स कि मुझे पूरी बॉडी को एक्टिव रखना है और फिर मुझे हाथ ऐसे आगे स्ट्रेच करने हैं. ओके, सो शोल्डर से लेके रिस्ट तक मैंने पूरा स्ट्रेच किया हुआ है, पंजे मैंने अंदर की ओर खिंचे हुए रखे हैं. I'm going to kneel down and show this to you sideways so you can observe. तो इस तरीके से keeping the core active, keeping the legs active, the chest lifted upwards. Okay, look at the arm. ये अभी relaxed है, elbow थोड़ा सा bent है, ये muscle relaxed है. And now look at it. Okay, you have to make every inch count. Okay, तो आप 500 अंदर pull करके रखेंगे पहले. अब हमको क्या करना है, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, इसको प्रेस करिए, पूरी बॉडी स्ट्रेट, एंड देन अगेन ओपन, स्प्रेड इट आउट. द रिस्ट आर पुल्ड इनवर्ड्स, हाथ ऐसे नहीं है, अंदर की तरफ खिंचे हुए हैं. अगेन अंगूठा अंदर, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, बॉडी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, close, open. Last two. Close, open, close, open. हो सके तो हाथ ऊपर ही रखिए. Okay, it's a nice challenge to do. अभी फिर से अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, and we are going to do wrist rotations like this. Whenever you want to start your wrist rotations, सबसे पहले कलाई को एकदम नीचे लेके जाइए. We have 360-degree range available in our wrists. जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको करना है, अंदर से बाहर आपको घुमाना है. ओके, हाथ एकदम सीधे रखते हुए आपको अंदर से बाहर इसको घुमाना है 10 बार. प्लीज काउंट फॉर योरसेल्व्स. पीठ सीधी, कोर एंगेज्ड, लेग्स एंगेज्ड. 10 बार आप इसको घुमाएंगे, हो सके तो बिना ब्रेक के, वरना प्लीज लिसन टू योर बॉडी मोर देन यू लिसन टू मी. और 10 बार हो जाने के बाद हम इनको उल्टा घुमाएंगे, अंदर से बाहर. Okay, you already feel the burn in the arms now. I do. That's how effective these things are if you do them the right way. तो 10 बार आप इसको complete करिए. Wonderful. Lakshmi ma'am, we start exactly at 8 o'clock to answer your question. We are live every day from 8 to 9 in the morning. Okay, so please be on time. और ये 10 हो जाए तो थोड़ा सा break लीजिए. Already you feel the difference. So many muscles that we are not aware of are coming into play. Okay, that is the beauty of these things. तो ये आपने कर लिया 10-10 बार. Now we going to take it a notch higher. तो अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, I will also try कि मैं हाथ नीचे ना रखूँ. आप भी कोशिश करिए, अगर आप उसको constantly कर सकते हैं without a break. I will be talking and demonstrating at the same time. तो बहुत ज्यादा holding time आपको बीच में lag नहीं होगा. Okay, so I'm again going to show this to you sideways. सबसे पहले हम लोग हाथ को सीधा करके बस होल्ड करने वाले. तो यू हैव टू लिटरली पुश द हैंड्स फॉरवर्ड. नाउ व्हेन यू पुश, मेक श्योर द बैक डज नॉट गो फॉरवर्ड. एकदम सीधा, कोर एंगेज्ड. यू शुड बी एबल टू फील योर कोर स्ट्रेट, चेस्ट लिफ्टेड अपवर्ड्स, नीज एक्टिव, थाइज एक्टिव, एंड स्ट्रेच फॉरवर्ड. जस्ट स्टे देयर. आई एम काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, back straight, 10, core active, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. अब वहीं पे रुकिए. अब पाम्स को अंदर पुल करिए, स्ट्रेट इन, उंगलियों को चिपका दीजिए अभी. ओके, और फिर पाम्स को पूरा नीचे करिए, अंदर की तरफ पुल करिए.
Okay, now we're going to do this 15 times. Up and down. पेट आगे आने लगेगा, पीठ को सीधा रखिए. Up and down. Up and down. 4, elbows tight, down, back straight. 5, down. 6, down. 7, नीचे लेते हुए रिलैक्स नहीं करना है, डाउन, पुश करना है अंदर. 8, down. 9, down. This is very good for your wrists. 10, down. We hardly do anything for the wrists. 10, down. Last 5. 5, down. Elbows tight. 4, down. 3, neck को neutral रखिए, down. 2, down. अब last one, pull it in and look at the next thing. We're going to make small circles with the palms like this, अंदर से बाहर. 1, हाथ पूरे tight. 2, very small controlled movement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, last 5, 4, make sure back is straight. 3, 2, वहीं पे रुकिए, अब उल्टा घुमाना है ऐसे. 1, नीचे से बाहर की ओर. 2, 3, 4, back straight. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, and 1, and then slowly down and feel the burn. Okay? So अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप पाम्स को ऐसे लाइटली ऐसे शेक ऑफ कर लेंगे. ओके, फिर आप एल्बो से पूरा आर्म्स को शेक ऑफ करिए. आप ऐसे ऐसे हाथ की मसाज भी करिए. I know how it feels. I just did it with you. Okay? But trust me, this is very effective, very good for toning. Thank you very much everybody for appreciating. Thank you Nilima ma'am. Thank you Sudha ma'am. Okay? तो थोड़ा सा आप ये relax कर लीजिए because we have to do more stuff with the arms before we go on to working on the legs and their toning. तो ये हमने कर लिया. अब हमारे हाथ सीधे थे. What we're going to do now is take the arms sideways and repeat a few things. So we started, remember we started with this and we started with this. We did the clasping and unclasping of our fists and then we did the rotations. We're going to repeat all the steps, the entire sequence with the arms sideways. तो आपको क्या करना है? You will stand with your feet hip width apart. Okay? Toes and heels in a straight line. अच्छे से पूरा पंजा, पैर का पंजा flat on the floor. You're going to contract the knees, contract the thighs, and you're going to check that your core is engaged, your chest is lifted upwards. I will say this many times because I know we tend to forget. All right, हाथ पहले side में रहेंगे. You have to make sure your stance is right before you start. शुरुआत तो सही होनी चाहिए ना हमेशा. अब हम हाथ साइड में ले जाएंगे. I'm first going to show this to you sideways. हाथ आपके शोल्डर लेवल पर, ना ऊपर ना नीचे. शोल्डर लेवल पर आपको हाथ रखना है. It's okay if you can see only one palm. That's absolutely all right. I don't want to move further away. Okay? तो पहले हम यहाँ से उंगलियों को spread out करेंगे. अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर. Again, 2, 3, 4, 5, core straight. 6, 7, 8, 9 and 10. अब यहीं से हम लोग रिस्ट रोटेशंस करेंगे. तो पूरी कलाई को नीचे लेके जाइए और पूरा सर्कल बनाइए. Okay, I've been kneeling down on the floor for a while, so I'm going to use this. Always listen to your body. It will thank you. Okay, तो ये पूरा हम रिस्ट रोटेशंस करेंगे.
लुक एट द मूवमेंट, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आपको रेंज इस्तेमाल करना है, नहीं करोगे तो रेंज और कम हो जाएगा, करोगे तो अभी जहां पर है उससे इंप्रूव होगा. वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, एवरीबडी ऑफ अस. तो इसको 10 बार करेंगे, फिर 10 बार रिवर्स घुमाएंगे. दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर. हाँ, ओनली यू कैन सी वन व्हेन आई टर्न दैट वे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों को आप अच्छे से यूज कर रहे हैं. वील कंप्लीट 10. हो सके तो यहीं पे रुके. अब पंजों को अंदर आपको पुल करके रखना है. हमने ये किया था. वी आर डूइंग द सेम थिंग बट वी आर डूइंग इट साइडवेज. ऑल राइट, एंड देन डाउन. पुल देम इनवर्ड्स. अप डाउन, बैक स्ट्रेट, अप, चेस्ट अप, डाउन. 4 down, 5 down, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 down, last 5 down, 4 down, 3 down, 2 down, 1. यहीं पे रुकिए. अब सर्कल्स बनाएंगे. स्लो, स्मॉल, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, फिंगर्स स्टिकिंग टू ईच अदर. 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 and 1. Now reverse. 1 2 3 4 5 6. Look in the front. 7. Back straight रहेगा. 8 9 10 5 4 3 2 and 1 and slowly down. थक गए ना? I know how it feels. It's worth it. ठीक है? Gently first shake off your palms. Thank you so much Vaishali ji. Thank you Primla ma'am. Thank you Sarat sir. It's good to know that you all are enjoying the workout. अब एल्बो से भी थोड़ा हाथों को आप रिलैक्स करिए. आई नो कि यहाँ पर बहुत आता है. ओके, आई नो. तो इसको आप पूरा मसाज करिए, ऊपर से लेके नीचे तक मसाज करिए अच्छे से. दूसरे हाथ पर भी. So this was something for the arms, but I hope you have learned how to keep the entire body engaged. Like I said, so ये थोड़ा सा jargon है, but I will simplify it for you. There are simple exercise and there are compound exercises. This is very basic. This is just the foundation of the fitness science that we know of. Okay, तो जब आप multiple muscles को engage करते हैं, it becomes a compound form of exercise. That is the workout that gives you return for every second. तो जितना ज्यादा आप बॉडी को एंगेज कर सकते हैं उतना ज्यादा आप एंगेज करिए. दैट इज व्हाई आई केप्ट टेलिंग यू ऑल कि पैरों को भी एक्टिव रखिए, कोर को सीधा रखिए, पीठ को सीधा रखिए, कीप द पोस्चर स्ट्रेट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प इन एंश्योरिंग. Personally speaking, I am not into calorie counting, but I know that for some people it makes a lot of difference because based on your fitness objective. तो जितना ज्यादा मसल को आप एंगेज करेंगे उतना ज्यादा आप एनर्जी एक्सपेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर होगा. Okay, so if that is how you look at it, then everybody has something to take out of this. That is our guarantee. Okay, and that is why we want your feedback. So keep it coming. Like I said, the last 10 to 15 minutes will be devoted to Q&A. तो जब आपके तब सवाल आएंगे, I will be able to answer them. So hold on to them. And like I said, जो लोग ये खड़े रह के नहीं कर सकते हैं, वो बैठ के कर सकते हैं. You have to make sure your back stays straight. So just a time check. Wonderful. Now we are going to go on to the second leg of the workout for the day. Like I said, ये हमने primarily focus किया था on the upper body while involving all the muscles possible. अब हम जो करने वाले हैं वो आपको
देखकर ऑब्वियसली लगेगा कि ये प्राइमरीली लोअर बॉडी के लिए है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे इसमें भी आप मैक्सिमम मसल एंगेज कर सकते हैं और आपको अपना फॉर्म कैसा रखना है. लाइक आई सेड, मैंने कुछ हैंडी रखा है, आप भी रखिए. आप में से कुछ लोग शायद एक ब्लैंकेट या फोल्डेड रजाई या कुछ लेकर आप ज्यादा कंफर्टेबली इसको कर पाएंगे. सो वट एवर वर्क्स फॉर यू, देयर इज नो शेम, there should be no hesitation in using things like these. Please respect your bodies. I tell all my students, अभी तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो I can't see them, I cannot correct them, you know, I cannot adjust their postures or alignment. So I always tell them that listen to your body more than you listen to me or any teacher or expert in the world. Your body knows best. ठीक है, तो अब जो है we are going to do things lying down. इसलिए मैंने भी इस तरीके से रेडी रखा है. आई होप यू विल बी एबल टू सी मी ऑल थ्रू आउट. आई एम गोइंग टू चेंज द एंगल सो दैट इट बिकम्स बेटर. ऑल राइट, आई थिंक दिस शुड बी फाइन एंड यू शुड ऑल्सो बी एबल टू हियर मी क्लियरली. तो अब जो करना है वो आप पहले ध्यान से देख लीजिए. हमको साइडवेज लेट के कुछ चीजें करनी है एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मूव but I think first let me try this. I will try and come forward, read your comments, and then if I need to change anything, I will do that. As of now, I'm sticking to this. तो ये हमको यूज करना है हमारे हाथ के पास में. अगेन लेट कर तो ऑलमोस्ट सभी लोग एक्सरसाइज कर ही सकते हैं. फिर भी आपको कैसे लेटना है, इन केस आपको नेक में कोई कंसर्न है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइसिस है, वर्टिगो है, कुछ भी है, यू वांट टू टेक इट इजी ऑन द नेक, या आपको शोल्डर या आर्म में कुछ है, तो आप कैसे कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू शो इट टू यू. सो देयर आर गोइंग टू बी वेरिएशंस एंड मॉडिफिकेशंस फॉर ऑल पॉसिबल केसेस. उसके अलावा अगर कुछ है तो यू लेट मी नो. अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू पार्क इट फॉर द लास्ट 10 to 15 minutes. वंडरफुल. सो सी, इट्स गुड टू सी सो मेनी पीपल जॉइनिंग इट. आई होप आपके फैमिली मेंबर्स भी साथ में कर रहे हैं. अब जो हम करने वाले हैं ये करने में बच्चों को बहुत मजा आता है. सो इफ किड्स आर अराउंड एंड दे आर फ्री, डू इन्वॉल्व देम. ओके, सो लेट्स सी. तो पहले हमको क्या करना है, वी आर गोइंग टू लाई डाउन ऑन वन साइड, एनी वन साइड. तो आपके पास दो ऑप्शन है. एक तो ये चीज आप हैंडी रखिए कुछ भी. तो द फर्स्ट ऑप्शन इज टू लाई डाउन लाइक दिस. ओके, एक ऑप्शन है ऐसे लाई डाउन करने का. अब इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रखने की जरूरत है. और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, लाइक आई सेड, इफ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर नेक बेटर, तो फिर आप हाथ नीचे रख के लाई डाउन. हाथ एकदम सीधा है, सर मेरा हाथ के ऊपर है, दूसरा हाथ मैंने नीचे रखा है फॉर बैलेंस. दिस इज वन ऑप्शन. द अदर ऑप्शन इज टू लाई डाउन लाइक दिस. नाउ प्लीज नोट, बी वेरी अवेयर व्हेनेवर यू सी समवन डेमोन्स्ट्रेटिंग, बी ऑब्जर्वेंट. ऐसे नहीं रुकना है, कोहनी नीचे ऐसे नहीं लगानी है. ये हाथ आपको फ्लैट नीचे लगाना है सो दैट राइट फ्रॉम द एल्बो अप टू योर होल बॉडी इज फ्लैट ऑन द फ्लोर. No gaps in between, no gaps. Okay? तो ऐसे आपको रुकना है, तभी आप कंफर्टेबली. हम कभी कभी ऐसे लेटते हैं ना, ऐसे गणपति की मूर्तियां भी बहुत खूबसूरत और क्यूट बनाई जाती है ना, इन द रिक्लाइनिंग पोजिशन. सो यू हैव टू बी इन अ रिक्लाइनिंग पोजिशन ऑन वन साइड. मेक श्योर योर होल बॉडी इज इन अ स्ट्रेट लाइन. It is all right if you cannot see my feet at the moment. It is absolutely okay. I'm going to show you what you are meant to do with that. साइड पे आप लेट गए. अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है. You have two options again. We are full of options for you. तो आपको क्या करना है, या तो जो हाथ आपका अभी स्पेयर है, ये हाथ आप ऊपर रख सकते हैं सीधा. सीधा मतलब शोल्डर और रिस्ट स्ट्रेट लाइन में. दूसरा ऑप्शन है, इस हाथ को आप पेट के पास या चेस्ट के पास में रखिए, तो आपको ये बैलेंस में हेल्प करेगा. बिकॉज अब हम लोग लेग रेजेस करने वाले हैं. सो व्हेनेवर वी मूव वन बॉडी पार्ट, तो थोड़ा सा बैलेंस का आपको ध्यान रखना होगा. तो ऑप्शन नंबर 1 इज हाथ ऊपर रखिए और पैर को इस तरीके से लिफ्ट करिए. लिफ्ट करते हुए टोज जो है, टोज पे ध्यान दीजिए. टोज मैंने हाथ की तरफ टर्न करके रखे हैं, ऐसे बाहर नहीं है, सीलिंग की तरफ नहीं है, हाथ की तरफ टर्न करके रखे. दैट इज द एंगल दैट आई एम लुकिंग फॉर. ओके, मैं 2-4 करके दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको वेरिएशन भी दिखा रही हूँ. ओके, एक्सेल करते हुए पैर ऊपर. हाथ ऊपर क्यों रखा है हमने? जस्ट टू सी, इट इज लाइक अ बेंच मार्किंग. अच्छा, अब मेरा पैर इतना ऊपर आ रहा है. ओके, अब इतना आ रहा है. ओ नाउ इट इज टचिंग. इट इज ओनली फॉर बेंच मार्किंग, वरना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. यू कैन कीप इट डाउन. इट विल हेल्प यू विद प्रॉपर बैलेंस, ताकि आपकी बॉडी ऐसे टर्न नहीं हो जाएगी, आप साइड पर ही रहोगे. एंड यू डू दिस
स्लो। की थिंग्स टू रिमेंबर, जितना पैर ऊपर आता है उतना ही लाइए, डोंट फोर्स योर बॉडी। वी आर गोइंग टू डू 20 रेपिटेशंस, तो 5, 7, 10 के बाद में तो आपका रेंज बढ़ना ही बढ़ना है, इट इज गारंटीड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेप्स। ओके, तो या तो आप ये हाथ यहाँ रखिए या तो यहाँ पे रखिए, टोस को अंदर की तरफ पॉइंट करके रखना है, लुक एट द फुट। ओके, और नी को आपको टाइट रखना है, ऐसे फोल्ड करके मत उठाइए। हाँ, अगर आपका नी सीधा होता ही नहीं है फॉर वट एवर रीजन, तो फिर आप उसको, ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए, इट विल गेट बेटर। सो वी गोइंग टू डू 20, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, ऐसे भी रख सकते हैं, 4 5 6 7, दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन दी ऑब्लिक्स, हाँ, 8 9, पूरा थाई काम कर रहा है, काफ भी, 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अभी ऊपर रखिए, जरा पैर को ऊपर रखिए, अभी टोस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, सीलिंग की तरफ, सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करेंगे टोस को। अब यहीं से हमको ना बड़े सर्कल्स बनाने हैं। अगेन यू कैन कीप द हैंड, अभी तो आपको हाथ नीचे ही रखना है, इधर नियर द चेस्ट और नियर द एब्डोमेन, समवेयर देयर, सो दैट यू नो यू आर स्टेडी, इस हाथ को यूज करके। एंड वी गोइंग टू रोटेट दिस लेग, मेक अ बिग सर्कल, टोज विल बी स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स ओनली। अभी कैसे दिख रहे हैं टोज, वैसे ही दिखने हैं टोज, घुटना मोड़े बिना बड़ा सर्कल बनाइए ताकि आपका पूरा पैर जो है काम करे। नाउ नोटिस वन थिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइजेस। जब आप पैर को पीछे लेकर जाते हैं तो आपका लोअर एब्डोमेन भी पूरा काम कर रहा है, लोअर एब्डोमेन, ओके, विच इज अ प्रॉब्लम एरिया फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जब आप पैर आगे ला रहे हैं आपका हिप्स भी काम कर रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू टोनिंग ऑफ द मसल, the more muscle you engage, the tighter your body is, the more effective you will find the exercise to be. Slow is the name of the game. आप बहुत फास्ट करेंगे तो उतना आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आप इसको स्लो करिए, चाहे तो 2 ब्रेक्स में करिए, पहले 5 करिए फिर 5 करिए। दिस इज माई 9th one and I hope you all have been counting. Now this is the 10th one. अब मुझे इसको उल्टा घुमाना है, मैंने पहले पैर पीछे ले जाके स्टार्ट किया था, अब मैं पैर आगे ले जाके स्टार्ट करूंगी, ओके, एंड दैट चेंजेस इट कंप्लीटली। पहले द फ्रंट मसल्स ऑफ योर लेग वर वर्किंग मोर, नाउ द बैक मसल्स ऑफ योर लेग्स आर वर्किंग। पूरा बड़ा सर्कल, जितना पैर आपका रेंज अलाउ करता है उतना ऊपर लाके आपको घुमाना है, अच्छे से घुमाइए, घुटना सीधा रखते हुए घुमाइए और अपर बॉडी को बहुत ज्यादा मूव मत करिए। ऑलराइट, कंप्लीट 10। ये इतनी अच्छी सिंपल दिखने वाली चीज है विच इज सो इफेक्टिव, जो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। सो ऑल दोज वंडरफुल पीपल हु रीच्ड आउट टू अस, आई रियली सल्यूट सच पीपल जिनको एज कंस्ट्रेंट्स, मतलब आई वुडंट इवन यूज द वर्ड कंस्ट्रेंट्स, जो लोग ये सोचते हैं कि हमको करना है, हमको एज से कोई लेना देना नहीं है, हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं, हमारी मेडिकल कंडीशन है, पर हमको फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। थैंक यू सो मच, it is because of people like you that I am doing what I am doing, you know, so thank you to all of you. I hope this works for you. ये हमने कर लिया है, थोड़ा सा आप अपने लेग को रिलैक्स करिए, हाथ थक गया हो, गर्दन थक गई हो, थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए इसको, फिर करवट लेके ही उठना है। रिमेंबर दिस टिप फॉर लाइफ, जब भी आपको जमीन से उठना है या बेड से भी उठना है, यू शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम दिस साइड। व्हेन वी कम अप, ऐसे सीधा ऊपर मैं करके भी नहीं दिखाऊंगी, आई विल नॉट डू दैट टू माई बॉडी। जब हम सीधा ऊपर आते हैं ना, पूरा वेट हमारे बैक पे जाता है, इट इज अ वेरी रूड शॉक फॉर द बैक, दैट इज नॉट द राइट वे टू कम अप। द राइट वे टू कम अप इज कम ऑन टू वन साइड, किसी भी एक तरफ करवट लीजिए और हाथ जो है वो चेस्ट के पास रखिए और दोनों पंजों का सहारा लेकर उठिए। कुछ लोग इतना करते हैं, वो बोलते हैं ना कि किनारे पे आके नैया डूब गई, तो वो ऐसे आके एल्बो पे उठते हैं। एल्बो पे मत उठिए, एल्बो इज अ जॉइंट, जॉइंट्स आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड और मिसयूज्ड इन दिस मैनर। दोनों पंजों का सहारा लेकर उठिए। एक तरफ हमने कर लिया,
दूसरी तरफ करेंगे. So again you may use something. Okay, always listen to your body. Just give me a second because in case I just want to check if everything is okay. All right, so I'm assuming my voice, the view, everything is all clear. Okay, चलिए दूसरी तरफ इसको हम कंप्लीट करते हैं. तो इट्स ओके इफ यू कांट सी माय हैंड कंप्लीटली, यू नो व्हाट टू डू. या तो हाथ सीधा रख के आपको लेट जाना है आराम से, आपको बॉडी स्ट्रेट रखनी है, या तो फिर आप हाथ को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एल्बो से लेके हील तक पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए. ओके, यू बैलेंसिंग ऑन वन साइड. तो ये हाथ या तो आप पहले ऊपर रखेंगे या तो फिर आप इसको नीचे रखेंगे. सबसे पहले हमको सिर्फ लेग रेजेस करने हैं. वी आर गोइंग टू डू 20. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3, नी टाइट. 4 5, पैर की तरफ मत देखिए, सामने देखिए. 6 7 8 9 10, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. अब इस पैर को हो सके तो ऊपर ही रखिए, वरना ब्रेक लेना है तो लीजिए. फुट को हम ऊपर की तरफ टर्न करके रखेंगे, पॉइंटेड टुवर्ड्स द सीलिंग. ओके, अब हम पैर पीछे से ले जाते हुए, दूसरा हाथ हमारा पेट के पास या चेस्ट के पास रहेगा. दैट्स गोइंग टू हेल्प यू विद बैलेंस. ओके, अब पैर पीछे ले जाते हुए वी गोइंग टू स्टार्ट दीज रोटेशंस. बिग सर्कल्स. टोज विल बी पॉइंटेड अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स थ्रू आउट. पैर नीचे आने के साथ में फुट को अंदर नहीं लेना है, फुट हमारा स्ट्रेच्ड ही रहेगा. स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स. जितना पैर ऊपर आता है हर बार उतना ऊपर लाइए. ये नहीं कि पहले 2 सर्कल तो बड़े बना लिए, उसके बाद में डोसे से उत्तप्पा बन गया, वैसे मत करिए. पूरा बड़ा सर्कल बनाइए. ओके. Feel the effort. Yeah. As of now, the front part of your leg, all these muscles are working very intensely. They are working, and the slower you do the rotations, the more they are going to get engaged, and the more you will see the resultant toning. करके देखिए रोज आप 1 महीना. आज मेजरमेंट लीजिए, फिर 1 महीने के बाद में मेजरमेंट लीजिए. You will feel the difference, and we would love to hear from you. कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका क्या फायदा आप महसूस कर रहे हैं. वी वुड रियली लव टू नो फ्रॉम यू. ये हमको 10 कंप्लीट करने हैं. वन मोर टाइम फॉर मी. अब यहीं पे रोकेंगे. यू कैन पॉज हियर इफ यू वांट. अब पूरा रेस्ट नहीं करना है तो यहाँ पे पॉज करिए. अब आगे से पैर घुमाना शुरू करना है. बिग सर्कल. नी विल रिमेन लॉक्ड. आगे भी पूरा लाइए, पीछे भी पूरा लेके जाइए और सीधा उठाइए. स्लो. द स्लोअर द बेटर. ग्रेविटी तो कोशिश करेगी जल्दी से आपका पैर नीचे खींच लेने की. आपको उसको भी फाइट करना है. वी हैव टू स्टे फाइटिंग फिट ना, इन एवरी पॉसिबल वे. Big circles. Last 3 for me. Last 1. And relax. इस नी को आप थोड़ा सा फोल्ड करिए, थोड़ा सा ऐसे रेस्ट करिए. उसके बाद में आई विल शो यू वन मोर टिप. मैं उठ रही हूँ, आपको उठना नहीं है. ओके, एज लॉन्ग एज यू कैन सी मी एंड यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग, और एटलीस्ट यू कैन हियर मी, यू आर फाइन. यू डोंट नीड टू गेट अप. आई एम गोइंग टू शो यू अ टिप. कई बार क्या होता है आफ्टर द वर्कआउट, स्पेशली इन योगा, वी रेकमेंड अ शवासन. शवासन इज द कूल डाउन पार्ट, जहां पे हम लेटते हैं और हम कॉन्शियसली पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं. इट्स अ स्टेट ऑफ सरेंडरिंग. ओके, दैट इज you earn the shavasana. I always tell my online classes also कि 1 घंटे की कसरत के बाद में आपने शवासन को कमाया है.
तो वो आपका हक बनता है, वो आपको लेना चाहिए. ओके, तो अब क्या है, हम पूरा शवासन नहीं करेंगे, but I'm going to teach you something to relax the back. A lot of people are unable to cope with exercise because lower back जो है उसमें पेन रहता है या स्टिफनेस रहती है. लोअर बैक हमको सपोर्ट नहीं करता है कई बार, ओके, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजंस. तो हम क्या कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं ये करने के. या तो आप दोनों पैरों को फोल्ड करिए इस तरह से. व्हेन यू आर फोल्डिंग, आपको हिप जमीन से नहीं उठाना, ऐसे नहीं करना है. द हिप विल बी रेस्टिंग ऑन द फ्लोर कंप्लीटली एंड यू जस्ट होल्ड, नॉट द नीज, नेवर प्रेस एनी जॉइंट, होल्ड नियर द शिन्स इफ यू कैन, और फिर धीरे से इसको पैरों को अपने पास में लाइए. तो इफ यू नोटिस माय एल्बोज आर फोल्डिंग, एल्बोज आर बेंडिंग. ये करके आपका स्पाइन जो है वो अच्छे से जमीन की तरफ टच होता है और बहुत रिलीफ मिलता है. यहाँ पे रुकिए, स्टे फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स. अच्छा, दोनों पैर से नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं. एक पैर को ऐसे फोल्ड करके रखिए और सिर्फ एक नी को ऐसे लाइए. सो दिस विल टेक केयर ऑफ वन पार्ट ऑफ द बैक. यहाँ पे 10 सेकेंड रुकिए, उसके बाद इसको छोड़िए, दूसरी साइड से वही चीज रिपीट करिए, so that your entire spine is relaxed. You may do this and then you may stretch your legs completely. You may rest your arms like this. You can close your eyes for a few seconds and relax while I get up. उठना कैसे है, करवट लेके उठना है. तो फिर से एक हाथ पीछे लेके जाइए, पूरा उसी तरफ टर्न करिए. Keep the body in a straight line. उठने की जल्दी मत करिए. दूसरे हाथ को चेस्ट के पास या पेट के पास रखिए. यूज बोथ योर palms and come. Okay, this is the right way to get off the floor. And now is our time together for Q&A. So any questions that you may have, I will be very happy to answer them. I really hope that you have enjoyed the workout. I hope you understand the science behind what we are trying to teach you. ओके, डोंट जस्ट लुक एट दिस कि अच्छा 1 घंटा गए, 8 से 9 लॉग इन किया और कर लिया, इतनी कैलोरीज बर्न हो गई. ठीक है, वो मैटर करता है. व्हाट मैटर्स इज दैट यू लर्न अ स्किल. वी वांट यू टू लर्न स्किल्स. एज आई टोल्ड यू, मिलियन सर चाहते हैं कि जब लॉकडाउन खत्म हो एंड यू कम बैक ऑन द ट्रैक, यू गो बैक टू योर फेवरेट स्पोर्ट, यू शुड फील अजाइल, यू शुड फील दैट एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज रेडी फॉर दिस. ओके, तो अच्छे से सीखिए, स्टार्ट टू फिनिश पूरा फॉलो करिए, और हम आपको वेरिएशंस दिखाएंगे, हम मॉडिफिकेशंस दिखाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ में भी करिए, बाद में भी आपको टाइम मिलता है तो आप उसको करिए. एंड लेट अस नो द बेनिफिट दैट यू फील आउट ऑफ इट. वी विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि हम जो आपका फीडबैक फॉलो करके आप तक प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज हिटिंग द राइट नोट्स. ओके, सो एनीथिंग एल्स? थैंक यू आशा मैम फॉर द अप्रिसिएशन. थैंक यू अनीता शेट्टी मैम. थैंक यू अलका मैम. वंडरफुल. Can these exercises be done during periods? So the arms, definitely so. The leg movements will vary from person to person. I would say कि आप lower body को उतना ज़्यादा exert ना करें when you're menstruating. You need to give the body some rest. तो पहले दिन तो usually I recommend कि आप कुछ भी ना करें. दूसरे दिन, तीसरे दिन, based on how your body, it varies from person to person. Okay, तो उसका ध्यान रखते हुए आपको करना पड़ेगा. Now somebody just asked about tummy की टोनिंग के लिए. तो like I said, हम कैसे दिखते हैं, हमारा बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है, कितना मसल है, कितना लीन मास है, ये बहुत सारी चीजों पे. दिस इज कॉल्ड बॉडी कंपोजिशन. ओके, इन टेक्निकल टर्म्स इट इज कॉल्ड बॉडी कंपोजिशन. ये सब बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर ये चीज पर हम अराइव करते हैं. तो आप पूरे दिन में कितना एक्टिव हैं, आप कितना मूवमेंट करते हैं, अपनी बॉडी को आप कितना मूव करते हैं, या सारा दिन हम बैठे रहते हैं. If we obviously have a job that requires us to sit in front of a system, we are going to sit. But what we would recommend is for every 1 hour, you at least stand, move around a little, take your water break, take your loo break, just walk around the house a little bit, ताकि आपके पैर जो हैं उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन मिले, आपका बैक भी ठीक रहे. ओके, तो वो सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैटर करता है. तो आप कितने एक्टिव रहते हैं, हाउ गुड योर डाइट इज, डू यू फॉलो द की प्रिंसिपल्स ऑफ ईटिंग राइट. What to eat at what time is also a very important factor. Unfortunately, a lot of us don't know the science behind nutrition. So these are things that you need to keep in mind. Okay, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपकी बॉडी कंपोजिशन डिसाइड होती है. Okay, तो it is basically
calorie intake and calorie expenditure, but without going into all those numbers, if you stay active, if you eat right, if you get adequate sleep, if you give your body time for recovery is very important. ये नहीं है कि आप दिन में 4 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं. There is something called as recovery time. वो मिलेगा तो दूसरे दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी. तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं इन टोनिंग अप. Having said that, उसके साथ में आप ऐसी चीजें अपने रूटीन में incorporate करें. We are going to bring to you more things that are going to be compound exercises and engage the whole body. Inch loss will happen, but remember, इतने सालों से जो हमने बनाया है वो एकदम से overnight गायब नहीं होने वाला है. So we will have to be patient and we will have to be regular. Okay, thank you so much. I am very happy to read your comments. Thank you, Rajni ji. Thank you, Amrita ma'am. If there are any more questions, I would like to answer them. I know that some of you are asking very therapeutic questions. For example, कि अगर कोई pregnant है या अगर किसी का liver transplant हुआ है, please understand, these are very individual cases. These are very subjective cases. So if there are 2 people who had a liver transplant, दोनों की medical history vary करेगी, उनका age vary करेगा, उनकी condition vary करेगी, बहुत कुछ vary करेगा. तो इस platform पे for a therapeutic requirement to give a generalized answer will be wrong, will be ethically incorrect, it can be misleading. तो आपके ऐसे जो भी questions हैं, please reach out to us on fitq.com, leave us a comment here and we will get back to you. Every day our team goes through all the comments. आज जो presentation हुआ है, जो अगले sessions भी आएंगे, वो सब आपके basis पर ही आएंगे. तो उसका आप ध्यान रखें and reach out to us and we will be happy to cater to you, but please understand we do not want to mislead anybody, so we will take our time to respond to you, but you will definitely hear from us. Okay, thank you Nilima ma'am, thank you Manisha ma'am. Yeah, so toning of the hands, Manisha ma'am, that is what we started with today, and like I said, the body composition takes time. Thank you Neerja ma'am, thank you Ruhi ji. तो इन चीजों में टाइम लगता है, तो बने रहिए. पिंकथॉन का ये जो इनिशिएटिव है ये 4 वीक्स के लिए मिनिमम चलने वाला है, एंड देन ऑफ कोर्स इट विल ऑल बी डिटरमिन्ड बाय द सिचुएशन, बाय ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन दैट वी रिसीव फॉर यू. सो डेफिनेटली स्टे पुट. टुडे इज ओनली द 4th डे, टुमारो विल बी अनदर सेशन, अनदर वर्कआउट. तो बने रहिए, keep at it, carve out this 1 hour for yourself. Like some of you have asked, if you miss out on the 8 to 9 time तो कैसे करेंगे? ये वीडियो पिंकथॉन के Facebook पेज पर लाइव है. A lot of you are sharing this. So if you think your family, your friends, people who can't make this time can benefit, feel free to share. This is a free resource for you. We hope that it reaches more people and more people get onto the fitness path, and we not just stay at home but we also stay healthy. Okay, so keep that coming and thank you very much. और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, in case somebody is saying, Nisha ma'am is saying there's a problem in the wrist. So we actually started with something for the wrist today. Please go through the video again. In the beginning you will find pointers. उसके अलावा भी कुछ है, so please let me know. Somebody said we've had fractures, so difficult to do. Asha ma'am, I understand if one has had a fracture. थोड़े limitations होते हैं, तो जब भी आप कोई workout देखते हैं, you have to please use your discretion. एक बार अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कुछ हो गया है तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर के लिए रहेगा. Having said that, कितना टाइम निकल गया है, ओवरऑल बॉडी का फिटनेस लेवल क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड. फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, यू नो, आई लव सेइंग दिस एंड आई बिलीव इन दिस, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस. आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके आज यानी 21 मई 2020 तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, जितना भी आपने एक्सरसाइज किया है, जितना भी आपने सही खाया है, जितना भी आपने जंक खाया है, यू नो, वो सबका लेखा जोखा, वो सब आज आप जो है ना, इट इज द सम टोटल ऑफ दैट फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, रादर व्हाट योर मदर एट व्हेन यू वर इन द वूम, तब से लेकर अब तक. दिस इज व्हाट यू सी व्हेन यू लुक एट द मिरर. ओके, if you want to change that, it is in your hands. It is one step at a time. Be patient, be kind to yourself, be disciplined, be consistent in your approach, and you will change for the better. Okay, what else? What to be taken as water or drink or meal before this workout? That's a very relevant question. That totally depends कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है. I always say कि आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप उसको किसी लाइट मील से करें. डोंट टेक अ वेरी हैवी मील, टेक अ लाइट मील. यू कैन स्टार्ट विथ अ फ्रूट, अ होल फ्रूट rather than a juice. A whole fruit is a good idea. Soaked nuts or dry fruits is a good idea.
बॉडी को टाइम लगता है डिफरेंट चीजों को ब्रेक डाउन करने में. सो फ्रूट्स आर ब्रोकन डाउन क्विकली, रॉ मील्स आर ब्रोकन डाउन क्विकली. ओके, तो आधे घंटे पहले भी अगर आपने खाया है, अगर कुछ ज्यादा खा रहे हैं तो 7 बजे तक खा ले, थोड़ा हैवी खा रहे हैं 7:30 बजे तक खा ले, ताकि 8 बजे जब हम शुरू कर रहे हैं यू आर गुड टू गो. Okay, so I think that's all that we need to do for right now, and I will see you all again. We are going to be live every day 8 a.m. in the morning. Stay tuned, be on time, keep a mat handy. Along with the mat, keep lots of enthusiasm handy, and do know this is for you, this is your platform. Give us your feedback, leave your comments, and we will work together. Milind sir, Tinkathon, FitQ, all of us. This is FitQ Guru Salima Poonawala signing off, and I hope till tomorrow morning, you will all stay at home, stay safe, and stay in the pink of health. Thank you very much for joining in this morning. I will see you all again very soon. Goodbye. Have a lovely day, all of you.